یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہمارے لیے آج کا کلام جو خداوند نے ہمیں دیا اس کا مضمون ہے غیر معبود اور معبود میں فرق۔ ہم آج دیکھیں گے کہ غیر معبود اور معبود میں کیا فرق ہے۔ ہم خداوند کے مقدس اور جلالی بابرکت کلام میں سے پڑھیں گے خروج کی کتاب اس کا 23واں باب اور اس کی 20ویں آیت۔ خروج کی کتاب پرانا عہد نامہ ہم خروج کی کتاب میں سے اس کا 23واں باب اور 20ویں آیت دیکھیں گے۔ دیکھ میں ایک فرشتہ تیرے آگے آگے بھیجتا ہوں کہ راستہ میں تیرا نگہبان ہو اور تجھے اس جگہ پہنچا دے جسے میں نے تیار کیا ہے۔ تم اس کے آگے ہوشیار رہنا اور اس کی بات ماننا، اسے ناراض نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہاری خطا نہیں بخشے گا، اس لیے کہ میرا نام اس میں رہتا ہے۔ پر اگر تو سچ مچ اس کی بات مانے اور جو میں کہتا ہوں وہ سب کرے تو میں تیرے دشمنوں کا دشمن اور تیرے مخالفوں کا مخالف ہوں گا۔ اس لیے کہ میرا فرشتہ تیرے آگے آگے چلے گا اور تجھے اموریوں اور ہتھیوں اور فرزیوں اور کنانیوں اور حویوں اور یبوسیوں میں پہنچا دے گا اور میں ان کو ہلاک کر ڈالوں گا۔ تو ان کے معبودوں کو سجدہ نہ کرنا، نہ ان کی عبادت کرنا، نہ ان کے سے کلام کرنا، بلکہ تو ان کو بالکل الٹ دینا اور ان کے ستونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنا، اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیرے روٹی اور پانی پر برکت دے گا اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کروں گا، اور تیرے ملک میں نہ تو کسی کے اسقاط ہوگا اور نہ کوئی بانجھ رہے گی، اور میں تیری عمر پوری کروں گا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے جانے کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔ ہم دیکھتے ہیں آج معبود اور غیر معبود کیا ہے۔ خدا نے ہمیں یہ سب کچھ کلام مقدس میں بتا دیا ہوا ہے، لیکن ہم پھر بھی کبھی کبھی غلطی کر جاتے ہیں۔ ہم معبودوں کو بھی غیر معبودوں کی لائن میں لے جاتے ہیں۔ معبود وہ ہوتے ہیں جن کی عبادت کی جائے، جنہیں سجدہ کیا جائے اور جس کے آگے جھکا جائے، اور خدا نے ہمیں کلام مقدس میں باپ موسیٰ کے ذریعے یہ سب کچھ بتا دیا کہ تم میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا یا دوسرے معبودوں کا نام تک نہ لینا، بلکہ تیرے منہ سے سنائی بھی نہ دے۔ ہم دیکھتے ہیں 23ویں باب اور 13ویں آیت میں خروج 23واں باب اور 13ویں آیت، اس کے اوپر ہی لکھا ہوا ہے ٹاپ پہ، اور تم سب باتوں میں جو میں نے تم سے کہی ہیں ہوشیار رہنا اور دوسرے معبودوں کا نام تک نہ لینا، بلکہ وہ تیرے منہ سے سنائی بھی نہ دے۔ اور ہم اپنے منہ سے بھی ان کو نکالتے رہتے ہیں، ان معبودوں کے نام لیتے رہتے ہیں، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم کرتے یہ ہیں کہ ان کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم غیر معبودوں کو نہیں مانتے۔
ہم جب دعا کرتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اے خداوند شیطان کو ہم سے دور کر دے، ابلیس کو ہم سے دور کر دے۔ خدا کہتا ہے کہ ان کا نام بھی تیرے منہ سے سنائی نہ دے، ان کا نام بھی تیرے منہ سے سنائی نہ دے۔ ہم بہت ساری باتوں میں غلطی کرتے ہیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ باپ موسیٰ کوہ سینا پر جب گیا تو خدا نے کیا فرمان جاری کیے؟ اس کے لیے نہیں بلکہ پوری قوم بنی اسرائیل کے لیے، اور قوم بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ وہ مسیحیت کے لیے بھی فرمان ہے۔ جو فرمان باپ موسیٰ کو ملے وہ ہم بھی انہی کو فالو کرتے ہیں۔ جیسے باپ موسیٰ کو خدا نے 10 حکم دے دیے، اور 10 حکم دینے کے بعد خدا نے ہیکل کا منظرنامہ دکھایا، ہیکل زمین پر کیسے بننی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں خروج 25 باب اس کی 18ویں آیت، 25واں باب اور اس کی 18ویں آیت کو دیکھتے ہیں، اور لکھا ہے کلام اقدس میں، اور سونے کے 2 کروبی سرپوش کے دونوں سروں پر گھڑ کر بنانا، اور ایک کروبی کو ایک سرے پر اور دوسرے کروبی کو دوسرے سرے پر لگانا، اور تم سرپوش کے دونوں سروں کے کروبیوں کو ایک ہی ٹکڑے سے بنانا، اور وہ کروبی اس طرح اوپر کو اپنے پر پھیلائے ہوئے ہوں کہ سرپوش کو اپنے پروں سے ڈھانک لیں، اور ان کے منہ آمنے سامنے سرپوش کی طرف ہوں۔ جس طرح ہم عہد کے صندوق کو دیکھتے ہیں کہ عہد کے صندوق کے اوپر 2 کروبی جو کھڑے کیے گئے وہ ایک اسٹیچو تھے، لیکن خدا ان کے معبودوں کی بات کرتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تو ان کے معبودوں کو سجدہ نہ کرنا۔ یہ کروبی جو تھے خدا کے حضور کھڑے رہتے ہیں، یہ وہ کروبی ہیں جو خدا کی ہر وقت عبادت اور پرستش کرتے ہیں، خدا کی حمد کرنے والے ہیں۔ اور ہم جب دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ تو ان کو سجدہ نہ کرنا، تو ہم دوسرے جو خدا کے حضور، خدا کے قربتی ہیں، ان کو بھی سجدہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم ان کے لیے بھی اپنے ذہن میں برائی ہی سوچتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے۔ ہم دیکھتے ہیں خدا نے اپنے لیے کروبی کے بت بنائے، یا انسان کے لیے، یقیناً انسان کے لیے۔ ہم خروج 26واں باب اس کی 31ویں آیت میں دیکھیں گے۔ خروج 26واں باب اس کی 31ویں آیت میں جب دیکھتے ہیں تو ہمیں اور کچھ بھی ملتا ہے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ تو آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک کتان کے بٹے ہوئے کتان کا ایک پردہ بنانا، اور اس میں کسی ماہر استاد سے، کس سے؟ عام بندے سے نہیں، ماہر استاد سے کیا کرنا؟ کروبیوں کی صورت کڑھوانا، کروبیوں کی صورت کڑھوانا۔ جب ہم دیکھتے ہیں یہ چیزیں کہ جس ہیکل میں وہ سجدہ کرتے تھے، وہ سجدہ ریز ہوتے تھے، جس ہیکل کی طرف آج بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم سجدہ ریز ہوں، کیونکہ سلیمان بن داؤد کو خدا نے یہ بتایا، یہ فرمان جاری کیا کہ جو کوئی اس طرف رخ کر کے مجھ سے مانگے گا، میں اسے کیا کروں گا؟ ضرور ہی دوں گا، کیونکہ میری آنکھیں اور میرا دل
यहीं लगा रहेगा, मेरी आंखें और मेरा दिल यहीं लगा रहेगा। और खुदा ने इस तरह से सुलेमान बिन दाऊद को हमारे लिए तसल्ली दी कि मैं कर सकता हूँ। लेकिन हम क्यों ऐसा करते हैं? हम देखते हैं पीछे 20वां बाब, उसमें खरूज का 20वां बाब हम देखते हैं। जब तो खुदा जब 10 हुक्म देता है तो उससे पहले खुदा बाप मूसा को कुछ हदायत करता है और कहता है, ये फरमान जारी होता है खुदा का, और खुदा ने ये सब बातें फरमाई कि खुदावन तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से और गुलामी के घर से निकाल लाया मैं हूँ। खुदा क्या फरमान करता है? क्या फरमाता है बाप मूसा को? मैं हूँ जो तुझे गुलामी के घर से निकाल लाया। और आज हम फिर गुलाम हो चुके हैं। मसीहत में आके हम इतने गुलाम हो चुके हैं, हम अपने उन खादमीन के जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, जिनकी गुफ्तार हमें अच्छी लगती है, जिनकी बातें हमें मोह लेती हैं, उनके गुलाम हो जाते हैं। हम बाइबल को नहीं पढ़ते बल्कि उनकी गुलामी करने पर मजबूर हो जाते हैं। आज हम अहद करें और छोड़ दें इस बात को कि हमने उनके गुलाम होना है। हमने खुदा के फरमान को मानना और उसी पे अमल करना है। वो फरमान जारी करता है, मेरे हजूर तू गैर मबूदों को ना मानना। गैर का मतलब है कि जिसे हम नहीं जानते, और जिसे हम जानते हैं यीशु मसीह फरमाते हैं कि जिसे हम जानते हैं उसकी इबादत करते हैं, जिसे हम नहीं जानते उसकी इबादत नहीं करते। तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत या सूरत न बनाना। तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत न बनाना और न किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है। तू उनके आगे सजदा न करना और न उनकी इबादत करना। तू उनके आगे सजदा न करना और न उनकी इबादत करना। हम इबादत किसकी करते हैं? हम इबादत खुदा की करते हैं जिसने हैकल बनवाई और हैकल के डिज़ाइन दिए। और जब हैकल के डिज़ाइन दिए तो ये नहीं कहा कि जिससे मर्जी बनवा लेना, बहुत सारे कारीगर थे। कहा कि माहिर उस्ताद से कढ़वाना, माहिर उस्ताद से बनवाना। हम जिसकी इबादत करते हैं हमें उसी को सिजदा वाजिब है, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ। जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सज़ा देता हूँ। जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सज़ा देता हूँ। और सज़ा का हुक्म उस वक्त लागू नहीं होता जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, उसकी सलीब को मानते हैं। तो सलीब क्या है? हाथ की बनाई हुई एक कारागरी है। लेकिन अगर चर्चेस में सलीब ना होगी तो वो चर्च नहीं होगा। जिस जगह पर सलीब ना लगाई जाए वो इबादत गाह नहीं बनती मसीहों की, वो मसीहों की इबादत गाह नहीं बन सकती। और जब हम सलीब लगा लेते हैं तो हमें पता चलता है, यीशु मसीह कहते हैं कि जिस तरह मूसा ने सांप को ऊंचे पर लटकाया, इसी तरह तुम भी इब्ने आदम को ऊंचे पर देखोगे, ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा, इसी तरह इब्ने आदम। तो फिर हम कहते हैं कि हम में कुछ
ताकत नहीं, हम कमज़ोर हैं, हम ज़ोरावर नहीं। हम ज़ोरावर उस वक्त होंगे जब खुदा हमारे बाप दादा के गुनाह की सज़ा हमें नहीं देगा। आज भी हम जितने लोग हैं सच्चाई से वाकिफ नहीं बल्कि झूठ को अपनाए हुए हैं और कहते हैं कि हमें कुछ नहीं होता, हालांकि हमें वो सारी आफतें जो बाइबल में लिखी हुई हैं 10 आफत वो आती हैं और वो हमारे बाप दादा के गुनाह की सजा होती है। और अगर हम मसीहत में जान सके और आजाद हो जाए और कलाम अक़दस को सही तौर पर पढ़ सके तो आज के बाद हमें वो कभी बीमारियां नहीं आएंगी, हमें इब्लीस तंग नहीं करेगा, हमें हमारे दुश्मन, जिस तरह खुदा कहता है कि मैं तेरे दुश्मनों का दुश्मन और तेरे मुखालिफों का मुखालिफ हूँगा, उस वक्त हमें ना तो कोई दुश्मन सताएगा, ना हमें भूख, ना तंग दस्ती, ना अफलास, न गरीबी, न अबलीसी कुव्वतें, न जादू के असरात हमें कुछ तंग नहीं करेगा, क्योंकि लिखा है खुदावंद के कलाम में कि इस्राएल पर अफसून नहीं चलेगा, इस्राएल पर अफसून नहीं चलेगा। और जितने मसीही हैं वो ब्रांच ऑफ इस्राएल हैं, जितने अपने आप को मसीही कहते हैं वो ब्रांच ऑफ इस्राएल हो जाते हैं। वो इस्राएल की टहनी है, शाख है, एक टहनी बन जाते हैं उस इस्राएल की जिसमें से यीशु मसीह यानी यहूदा के कबीले में से आया। और हजारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं और मेरे हुक्मों को मानते हैं रहम करता हूँ। और हजारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं, और हम क्या करते हैं, हम अपनी अपनी जंग लड़ रहे हैं। हम कहते हैं कि ये मिशन अच्छा कलाम नहीं दे सकती, मेरी मिशन अच्छा कलाम देती है, मेरे पास आओ, मेरे साथ चलो, मेरे साथ चल के तो देखो, पता चल जाएगा। मैं वहां पर पहलवान बन जाता हूं। क्या आप मेरे साथ हो, मैं आपको अच्छी बात बताता हूं। हालांकि हम बाइबल के मुताबिक बात ही नहीं करना पसंद करते, हम सच्चाई को जानने की कोशिश ही नहीं करते। जरूर है कि कलीसियाओं को जानने की जरूरत है। जब कलीसियाएं जान जाएंगी, सच्चाई से वाकिफ हो जाएंगी, तो फिर ना उन्हें कोई बुरी तासीर, ना इब्लीसी कुव्वत, ना कोई वबाई या मराज, जिस तरह बाइबल में वबाओं के बारे में लिखा हुआ है, वो उन पर नहीं आएंगी। तो फिर हम खुदा से मोहब्बत रख सकते हैं जब हम जान जाएंगे, जब हम जान सकेंगे, जब हम उसे देखकर इग्नोर नहीं करेंगे, पढ़कर इग्नोर नहीं करेंगे। फिर हम जान सकेंगे कि हम कुर्बान गाह के नज़दीक हैं। हम किसके नज़दीक हैं? कुर्बान गाह के नजदीक हैं। खुदा ने बाप मूसा से एक कुर्बान गाह बनवाई, खुदा ने बाप अब्राहम से एक कुर्बान गाह बनवाई, खुदा ने बाप मूसा से एक कुर्बान गाह बनवाई, और खुदा ने बाप अब्राहम से एक कुर्बान गाह बनवाई। और एक कुर्बान गाह किसकी बनी? यीशु अल मसीह की। एक कुर्बान गाह किसकी बनी? यीशु अल मसीह की कुर्बान गाह बनी, जिसमें हम देखते हैं खरूज 27वां बाब उसकी पहली 2 आयत हम पढ़कर देख लेते हैं। और तू कीकर की लकड़ी की कुर्बान गाह 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी बनाना। वो कुर्बान गाह चौखटी और उसकी ऊंचाई 3 हाथ हो, और तू इसके लिए उसके चारों कोनों पर सींग बनाना
और वो सींग और कुर्बानगाह सब एक ही टुकड़े के हों और उनको पीतल से मंडवाना। स्टॉप करो। खुदा ने ऐसे ही एक कुर्बानगाह बाप मूसा से बनवाई जो कोहे सीना में आर्डर हुआ था, जो कोहे सीना में आर्डर मिला था, बाप मूसा ने बनवाई ये कुर्बानगाह। और जब ये कुर्बानगाह बनाई गई, इसी तरह यीशु मसीह की कुर्बानगाह कौन सी थी? यीशु मसीह की कुर्बानगाह हमारे सामने है। सलीब हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानगाह बनाई गई, जिस पर अहद हुआ, जैसे कि 24वां बाब उसकी 8 आयत हम देखते हैं। खरूज 24वां बाब उसकी 8 आयत। तब मूसा ने उस खून को लेकर लोगों पर छिड़का और कहा, देखो ये उस अहद का खून है जो खुदावंद ने इन सब बातों के बारे में तुम्हारे साथ बांधा। खुदावंद ने इन सब बातों के बारे में तुम्हारे साथ बांधा। वो अहद है। खुदा के जितने अहद बांधे गए वो लहू के वसीला से, खून के वसीला से हुए। इसी तरह हम जब सलातीन पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है उसका 17वां बाब और उसकी 15वीं आयत। दूसरा सलातीन उसका 17वां बाब उसकी 15वीं आयत हम दूसरे सलातीन में से देखेंगे। और उसके आयन को और उसके अहद को जो उसने उनके बाप दादा से बांधा था, और उसकी शहादतों को जो उसने उनको दी थी, रद्द किया और बातिल बातों के पैरो होकर निकम्मे हो गए और अपने आसपास की कौमों की तकलीद की, जिनके बारे में खुदावंद ने उनको ताकीद की थी कि वो उनके से काम न करें, वो उनके से काम न करें। और हमने क्या किया? उनके से फिर काम किए। और उन्होंने खुदावंद अपने खुदा के सब अहकाम तर्क करके अपने लिए ढाली हुई मूर्तें यानी 2 बछड़े बना लिए और यसीरतें तैयार की और आसमानी फौज की परस्तश की और बाल की पूजा की। हम देखते हैं कि क्या किया उन्होंने 2 बछड़े बना लिए, ढाली हुई मूर्तें यानी 2 बछड़े बना लिए। उनको वो सिजदा करना शुरू हो गई। और हम क्यों कर ये कहते हैं, क्यों कर ऐसा करते हैं? हमें ये नहीं करना चाहिए। हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करें, तब वो हमारे रोटी और पानी पर बरकत देगा और हमारी उम्रों को दराज करेगा। और जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अहद हमसे कैसे बांधा। लूका की अंजील उसका 22वां बाब और उसकी 17वीं आयत। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा, इसको लो,
इसको लेकर आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अंगूर का शीरा अब से कभी न पीऊँगा जब तक खुदा की बादशाही न आ ले, जब तक खुदा की बादशाही ना आ ले। और हम क्या कर रहे हैं? हम खुदा की बादशाही के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर रहे। हमें ज़रूरत है कि हम खुदा की बादशाही के लिए अपने आप को तैयार करें। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगिरी के लिए यही किया करो। और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है। जिस तरह पुराना अहद बांधा गया और इसी के साथ साथ खुदावंद यीशु मसीह ने एक नया अहद भी बांध दिया। और असल में हमारा मबूद यीशु मसीह है। हम उसे सलीब पर देखें, उसकी क्रूसिफिक्शन देखें या वैसे उसको देखें, हमें ये मुनासिब है कि हम यीशु मसीह को देखते रहें ताकि हम शिफा पाएं। जिस तरह मूसा ने सांप को बलि पर लटकाया और वो सांप को जो देखता था, सांप का डसा हुआ, वो बच जाता था, इसी तरह हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम देखें और शिफा पाएं। और ये शिफा हमारे अंदर से कभी न जाए, हमारे बच्चों और हमारी नस्लों के लिए ये बाइस इज़्ज़त और बाइस बरकत बात ठहरे। हम मरकज़ की इंजील में से देखेंगे, मरकज़ की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 3 बाब, उसकी 27वीं आयत। 28वीं आयत, उसका 3 बाब, उसकी 28वीं आयत। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बनी आदम के सब गुनाह जितना कुफर वो बकते हैं मुआफ़ किया जाएगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ, बनी आदम के जितने गुनाह वो जितना कुफर बकते हैं वो मुआफ़ किया जाएगा, लेकिन जो कोई रूहुल कुद्दस के हक में कुफर बकेगा वो अब तक कभी मुआफ़ नहीं किया जाएगा, यानी वो अब तक मुआफ़ी ना पाएगा, बल्कि अबदी गुनाह का कसूरवार है। क्योंकि वो कहते थे कि उसमें नापाक रूह है। कौन कहते थे? फकी और फरीसी कहते थे कि यीशु मसीह में नापाक रूह काम करती है। और आज भी हम ऐसे ही काम करते हैं। आज भी हम जब दुआ करने के लिए कोई भी निकलता है तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि ये जादूगर बन गया है। आज भी हम में वही है, वही फकीयों और फरीसियों वाली बातें हैं, वही सरिश्त है। आज भी हमने अपने अंदर यीशु मसीह की मोहब्बत को नहीं बसाया, क्योंकि अगर हम मोहब्बत बसाते तो हम क्या होते? नमकीन होते। और नमकीन यीशु मसीह ने उसके बारे में क्या कहा है कि तुम दुनिया के नमक हो और अपने अंदर नमक रखो, एक दूसरे से मेल मिलाप में रहो, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहो। हम यूहन्ना की इंजील उसका 13वां बाब और 31वीं आयत में मोहब्बत के बारे में देखते हैं कि यीशु मसीह फरमान जारी करते हैं कि बच्चों, मैं थोड़ी देर और तुम्हारे दरमियान हूँ, साथ हूँ, लेकिन तुम मुझे ढूंढोगे और तुम आपस में एक दूसरे के साथ क्या करना? मोहब्बत रखना। तुम आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखना ताकि लोग तुम्हें मेरे शागिर्द जाने,
लोग तुम्हें मेरे शागिर्द जाने। इसी तरह लूका 22वां बाब 19 और 20 आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने अहद बांधा हमसे। और इसी तरह यूहन्ना 14वां बाब उसकी 11वीं आयत 14वीं आयत तक कहा कि जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे हो जाएगा, जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और हम कहाँ फिरते हैं? हम आज भी ढूंढ रहे हैं कि मबूदों और गैर मबूदों में क्या फर्क है, वो हमें पता ही नहीं चलता। और हम गैर मबूदों के साथ साथ मबूदों को भी मानने से इनकार कर देते हैं। इसलिए खुदा फरमान जारी करता है यीशु मसीह के जरिए कि जितना कुफर इब्ने आदम और जितना कुफर आदमियों में है, बनी आदम में है, वो मुआफ़ किया जाएगा, लेकिन रूहल कुद्दस के खिलाफ यानी इब्ने आदम के खिलाफ जो गुनाह होगा वो मुआफ़ नहीं किया जाएगा। और हम क्या कर रहे हैं? हम मुआफ़ी के तलबगार नहीं होते। हम मुआफ़ी तब मिल सकती हमको जब हम मोहब्बत के तलबगार होंगे। खुदा से अदावत रखना पर क्यों हम ऐसा करते हैं? हम खुदा से अदावत रखते हैं। यूहन्ना 15वां बाब और उसकी यूहन्ना 15वां बाब और उसकी 23वीं और 25वीं आयत में हम देखते हैं कि हम खुदा से अदावत रखते हैं। जो मुझसे अदावत रखता है वो मेरे बाप से भी अदावत रखता है। अगर मैं उन में वो काम न करता जो किसी दूसरे ने नहीं किए तो वो गुनहगार न ठहरते, मगर अब तो उन्होंने मुझे और मेरे बाप दोनों को देखा और दोनों से अदावत रखी। हम क्या करते हैं? हम बाप को भी और बेटे को भी जानते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? अदावत रखते हैं। हम अदावत असल में उस पादरी से, उस मुबशरान इंजील से रखते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम बातों ही बातों में रूहुल कुद्दस के ख़िलाफ़ गुनाह कर जाते हैं। आज के बाद हम कोशिश करें कि हम खुदा के कलाम पर चलने की अपने अंदर जो है वक़्त पैदा करें, एक वसत पैदा करें और खुदा हमें इस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। खुदा उनके इस कलाम के पढ़े जाने के वसीला से आज जो कुछ आपने सुना उसके वसीला से खुदावंद आप सबको बाबरकत ठहराए। आमीन।